Hello, Namaskar, and welcome back to my channel Smart Learners by Kamna Agarwal. And the slogan of the channel says, Clear your concept. Yes, to clear your concept on science, stay tuned with me. And first of all, I wanted to say a big thank you to all my students and again to all my subscribers who had shown a lot of interest in very first video. And आपने जो valuable responses and suggestions share किए हैं so that I can make the content on that. I assure you I'll be providing the content very soon on those topics which you had made available to me. And yes, time management is very important for a student, right? So understanding this thing in my mind, I am making the modules in a very short video type so that आप चलते फिरते कहीं पे भी साइंस समझ सकते हैं, अपने टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको कमांड कर सकते हैं. But yes, there is a condition. If you're watching this video, don't watch. Don't watch. Why? If you're mugging up and if you are in the habit of mugging up, don't mug up. You have to understand the concepts. You have to learn the concepts, right? And that even by heart. And how it could be possible if you'll be watching the video completely and finding the task and the small questions which have been given. If you are mastered in understanding those questions and giving the answers on your own, अगर आप खुद answers दे सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि how much you have commanded on that particular topic. Yes, so stay tuned. There's a condition of watching Smart Learners कि आपको अपना टास्क खत्म करना है, आपको मग अप नहीं करना है और आपको साइंस को डे टू डे लाइफ में एंजॉय करना है. Start our today's topic, that is defects in human eye. तो वी सी दैट डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई. अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि हमारी आईज का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आईज एंड व्हाट आर द फंक्शन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द विजन डिफेक्ट्स. यानी कि यस, जैसे हमारी ब्यूटीफुल आईज होती हैं तो कैन देयर बी एनी डिफेक्ट, उनमें कोई खराबी भी हो सकती है. विजन डिफेक्ट्स बोलते हैं जिनको. विल बी डिस्कसिंग दोस विजन डिफेक्ट्स, है ना. तो अब ये विजन डिफेक्ट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट. अब इनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, है ना. तो व्हाई वी कॉल द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स and how many types of refractive defect vision are there, we would be discussing in this upcoming video. So please stay tuned in. Let's talk about first of all कि what are the parts, है ना. तो एक बार फटाफट हम इसको recapitulate कर लेते हैं, revise कर लेते हैं. As you can see on your screen here, this is the eye, है ना. This is your human eye. जैसे मैंने कहा था, human eye is not like this, है ना. Only the 1/6 portion is visible. तो 1/6 यानी कि जो हमारी human eye होती है वैसे आई बॉल स्ट्रक्चर होती है, गोल्फ जैसी. 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है. तो उसमें से हमें केवल जो सामने का पोर्शन दिखाई देता है, दैट इज 1/6, है ना. लेट्स रिवाइज क्विकली सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, राइट. Okay, so as you can see, cornea. The cornea is a transparent membrane which is just over the pupil and the iris, है ना. It protects from the infection, it protects from the any kind of accident also. And 70% of the light is refracted. Refracted यानी कि अगर कोई लाइट आ रही है, आई पे पड़ रही है ना, तो दिस लाइट गेट बेंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस एंड इट फॉर्म्स अ इमेज ऑन द रेटिना हियर. दिस इज द रेटिना, है ना. तो कॉर्निया जो है 70% लाइट को रिफ्रैक्ट करता है हमारे लेंस की तरफ, है ना. एंड फिर देन वी टॉक अबाउट द आइरिस. आइरिस इज योर कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ठीक है. दैट कुड बी ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, राइट. एंड प्यूपिल इज द same cheese that we discussed earlier also. This is the black hole type structure present between the iris, है ना. आइरिस के पीछे जो होता है दैट इज प्यूपिल. इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा ऑफ द आईज, ठीक है. तो कैमरा का काम करता है यानी कि इट अलाउज द लाइट टू एंटर थ्रू इट एंड इट आल्सो डिसाइड द अमाउंट कि कितनी लाइट अंदर जाएगी और कितनी इंटेंसिटी से जाएगी, है ना. सो दैट इट प्रोटेक्ट्स द आई लेंस, है ना. अब नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की, दैट मीन्स बिटवीन दिस लेंस and between the pupil there is one liquid jelly like substance जिसका composition बिल्कुल blood के composition fluid की तरह होता है. and इसको हम बोलते हैं aqueous humor. what we call it?
वी कॉल इट एक्वस ह्यूमर, है ना। अब एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्यूपिल एंड द लेंस, फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और लिक्विड प्रेजेंट होता है हमारी आई को, बिकॉज दीज जो फ्लूइड्स हैं, विट्रस ह्यूमर, नेक्स्ट कौन सा है, विट्रस ह्यूमर, बिकॉज दीज बोथ फ्लूइड्स व्हाट दे डू, दे गिव द स्ट्रक्चर एंड द शेप, है ना, टू द आई बॉल। तो आई बॉल को शेप देते हैं, क्योंकि आई बॉल इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स ओनली, है ना, राइट, एंड ब्लड वेसल्स ऑल्सो। तो अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे लेंस की, तो लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये जो लेंस कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, कन्वर्जिंग होता है, लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन होती है रेटिना इन द आईज, एंड दिस कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्लास और सम प्लास्टिक, but it is made up of a jelly like substance, है ना, एक जेली जैसे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो it gives the thickness in the center to the lens and it is thin at the sides, है ना। तो that's why it acts like a convex lens, है ना। अब जो 30% यानी कि 70% तो कौन यार रिफ्लेक्ट कर देता है, बेंड कर देता है, and rest 30% is bent by the lens, है ना, and where it bended down towards the retina. तो retina acts like a screen, है ना, क्योंकि हर इमेज को फॉर्म होने के लिए स्क्रीन चाहिए, अगर इमेज फॉर्म होगी तो स्क्रीन चाहिए होगी, एंड इन ह्यूमन आई इट एक्ट्स एज द रेटिना। तो रेटिना में क्या होते हैं, हमारे दो तरीके के सेल्स होते हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, कोन सेल्स एंड द रॉड सेल्स, राइट। तो कोन सेल्स हमारे कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कलर सेंसिटिव होते हैं। रॉड सेल्स हमारे लाइट को, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो दे प्ले द रोल ओवर देयर, है ना। तो जब हम डार्क रूम में एंटर करते हैं तो आर जो प्यूपिल होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्यों, टू गेट मैक्सिमम लाइट टू एंटर इनसाइड, राइट, एंड वी कैन सी द डिफरेंट कलर्स, हम डिफरेंट कलर्स एक साथ देख सकते हैं, है ना, क्यों, बिकॉज द कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू स्पेसिफिक वेवलेंथ, दैट्स व्हाई वी कैन आइडेंटिफाई द मिलियंस ऑफ कलर्स लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन। तो बेसिक है, बट हम अलग अलग कलर शेड्स भी पहचान सकते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट द सेम टाइम, है ना। एंड रेटिना पे हमारा एक ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, व्हाट वी कॉल देम ब्लड वेसल्स, है ना। एंड ये ब्लड वेसल्स के साथ में हमारे प्रेजेंट होती है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स मैसेंजर का काम करती हैं, whatever the image is formed here, जो भी इमेज मेरे रेटिना पे फॉर्म होती है, it converts that image into electrical signals, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट करके it sends it to the brain, है ना, ताकि ब्रेन को सेंड करती है। So this is the complete processor. How do we see the things? So now you understand when I say that after brain, if there is any other very complex organ in human body is there, that is our eye. So it collects the light, it reflects the light, it makes an image, and then that image is converted into electrical signals, and then it is sent to the brain, and that's how we see the things. And वो भी image हमारी retina पे कैसी बनती है, real image. Again I say the property of the image, अगर real image form होती है तो हमेशा inverted form होगी, यानी कि आप जो भी चीज देखते हो आपको आपके रेटिना पे उल्टी बनी हुई दिखाई देती है ना, but your brain is so quick, जैसे उसको ये सिग्नल मिलता है it turns the image upright and आपको बताता है कि okay you are seeing the object, that is pen, that is table, that is board, right. So this is the complete function of the eye, है ना, जो हमने रिवाइज करा दिया। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, कि भाई आई का अगर एक फंक्शन है तो डिफेक्ट्स कहाँ से आते हैं, जब ये इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन इतने अच्छे से करती है तो व्हाई देयर आर द डिफेक्ट्स, यस, तो यस डिफेक्ट्स हैं हमारे, जिनको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, है ना। व्हाई वी कॉल इट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, बिकॉज जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, जो बेंडिंग लाइट की हो रही है, इट इज नॉट हैपनिंग इन अ प्रॉपर वे। Either the bending is should be on the retina, but it is forming before the retina, से पहले यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है, या रेटिना के बाद जाके बेंडिंग हो जाती है ना। तो ये अब होती क्यों है, तो we would be discussing this, but उससे पहले सबसे important चीज है, I would like to just explain here कि what is accommodation, क्योंकि कोई भी डिफेक्ट पढ़ने से पहले हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ना, कि
कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो उन डिफेक्ट्स को हम कैसे डील करेंगे, तो ये डिफेक्ट्स होंगे कैसे। तो व्हाट इज अकोमोडेशन, अकोमोडेशन होता है जहां आप कंफर्टेबल होते हैं, है ना। तो जब आपकी आईज कंफर्टेबल होती है कोई चीज को देखने के लिए, वेदर यू आर वाचिंग द फार थिंग, वेदर यू आर वाचिंग द नियर बाय थिंग, तो व्हेन इट इज कंफर्टेबल and it can adjust itself without straining, then it is known as power of accommodation. यानी कि the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation, है ना। Now you must be thinking what is the focal length now, कि focal length क्या होता है ना। तो focal length क्या होता है, focal length is the distance between the lens and the ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का जो फोकस है, जहां पे वो बन रही है ऑब्जेक्ट, है ना, तो उस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, है ना। तो कभी जब हम दूर की चीज देखते हैं तो फोकल लेंथ बड़ा होता है, पास की चीज देखते हैं तो फोकल लेंथ हमारा कम हो जाता है आई लेंस का, राइट। तो इसी एडजस्टमेंट को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ये करता कौन है, हाउ इट हैपेंस, है ना। तो ये एडजस्टमेंट फोकल लेंथ का कौन करता है, तो हमारी आईज में एक होता है फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फार पॉइंट, फार पॉइंट यानी कि व्हेन यू सी द फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट यानी कि जब आप कोई दूर की ऑब्जेक्ट देखते हो जो काफी दूर है, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस पे या इन्फिनिटी पे है, तो उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। तो ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई का एडल्ट्स में इट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि आप अनंत तक देख सकते हो, राइट, बहुत दूर तक आप देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रेनिंग ऑफ योर आईज। दूसरा नियर पॉइंट, अगर आपको पास की कोई चीज देखनी है तो वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप नियरेस्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप क्लियरली रीड आउट कर सकते हो, है ना। अब ये फोकल लेंथ एडजस्ट कौन करता है लेंस का, द क्वेश्चन इज कौन एडजस्ट करेगा। ऑब्वियसली इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये जो लेंस होता है इसको कौन होल्ड करके रखता है, ciliary muscles. Who hold this? Ciliary muscles. So ciliary muscles, they act like a stand, है ना. They hold the jelly-like convex lens in such a position that it can adjust its focal length, whether it's seeing a far object, whether it's seeing a near object, accordingly, है ना. तो ये जब टाइट खींच देती है कॉन्वेक्स लेंस को तो वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, और जब ये रिलैक्स हो जाती है मसल्स तो हमारा जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इट थिकन्स इन द साइड्स, है ना, लाइक इट वुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पीपीटी। तो व्हेन द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जब वो ऐसे पुल आउट होती हैं, स्ट्रेन होती हैं, तो व्हाट हैपन, जो फोकल लेंथ है या फोकल पॉइंट है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर फोकल पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा आपका लेंस कैसा होगा, थिन हो जाएगा। तो आप कहाँ की ऑब्जेक्ट देख सकते हो, दैट मीन्स फार ऑब्जेक्ट, है ना। व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, your eyes are focusing on a far point object, what is the condition of your lens and the ciliary muscles? The ciliary muscles are in the contracted shape and the focal point increases and the lens becomes thin, right? So just इसका opposite होता है जब आप पास की चीजें देख रहे हो, when you're looking at the nearby objects, then ciliary muscles relax हो जाती है। ciliary muscles यानी कि वो muscles which are holding the eye lens, है ना, जो eye lens को hold करके रखती हैं, right? और फिर क्या होगा, फोकल पॉइंट कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड इफ द फोकल पॉइंट इज डिक्रीज द साइज ऑफ द लेंस बिकम्स थिक, वो थिक हो जाएगा। तो दैट मीन्स यू आर वॉचिंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? So this is how does eye adjust itself for the power of accommodation, यानी कि when you see one object nearby and the other object far by, so all the role is played by the muscles, right? Okay, अब now the question comes, why do we have the two eyes? हमको एक आंख बंद करते हैं, when you close your one eye you can see the things around, ठीक है, but why do you need the two eyes? दो eyes देने की क्या जरूरत है, एक से भी तो काम चल सकता है ना। तो when we close our one eye the world become two dimensional to us, two dimensional यानी कि बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और एक आंख से हमको कितना विजन दिखाई देता है, 150 डिग्री तक। Your one eye can focus 150 degree, and when you see the two things from same thing from the two eyes,
तो आपकी आईज कवर करती है 180 डिग्री का डायमेंशन। दैट मीन्स जो जितना डिस्टेंस है तो आपकी आईज के बीच में कम डिस्टेंस है, तो दैट्स व्हाई इट ऑक्यूपाई 180 degree dimension. You can see the things very clear, है ना. You have seen some of the animals also. कुछ animals आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनकी eyes का distance काफी पीछे होता है, कि एक eyes यहाँ है, एक just back side होती है. Why? To increase the range of vision, है ना. तो vision को increase करने का एक बहुत important term आ रहा है यहाँ पे, stereopsis, है ना. If somebody asks you what is the stereopsis, ठीक है, तो जब हमारी दो आईज हैं, है ना, वी आर हैविंग टू आईज पोजिशन्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हेड, तो दैट रिड्यूसेस आवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस. तो अगर आप एक आंख बंद करते हो तो मैंने कहा था आपको फ्लैट चीजें, फ्लैट में दो एक्सेस दिखाई देंगे, आपको 2 डायमेंशनल चीजें दिखाई देंगी, राइट. लेकिन जब आप दो आंखें से देखते हो तो आपको डेप्थ भी दिखाई देती है, यानी कि एक आई से जो इमेज ब्रेन पे फॉर्म हो रही है, दूसरी आई से भी वही इमेज उसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो रही है. What the brain does, it compares, है ना, both the images it compares and it gives the best vision, है ना. तो वो आपको best vision देता है ना. तो जब keep both eyes open and then world takes the third dimension of depth, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, वेट या डेप्थ, साइज आप इजिली विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, एंड पहचान सकते हो. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियोप्सिस ओनली, है ना. So that is why we say the brain combines both the images which got by our 2 eyes, and then it gives you the extra information कि how that object is actually, आप उस actually को visualize कर सकते हो. Okay, now next coming upon the defects now. अब हम डिफेक्ट्स बहुत इजीली समझ सकते हैं. व्हाई? बिकॉज हमने क्या पढ़ लिया, हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ लिया. कि पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि जो सिलेरी मसल्स है वो आपकी कॉन्वेक्स लेंस, जो आईज में लेंस है, उसको एडजस्ट करती है व्हेन यू सी द फार ऑब्जेक्ट, व्हेन यू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, है ना. व्हाट हैपन अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है, अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज हो जाता है या टू सम एक्सटेंट काम नहीं करता, then what happened, we suffer from some refractive defects. And what are the refractive defects? There are 3 refractive defects. First is myopia, second is hypermetropia, and third is presbyopia. So first we will be discussing about the myopia, है ना. तो myopia में, as you can see in this picture, right, myopia को हम short sightedness भी बोलते हैं. We call it a short sightedness also. क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से फ्रेज को समझेंगे. जैसे अगर इस फ्रेज को if I use like this, you are a myopic person, यानी कि तुम दूर की नहीं सोच रहे हो, तुम पास की सोचो. think about the future, यानी कि a person who can see the nearby objects, एक ऐसा पर्सन अगर उसको पास की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, पर उसको दूर की ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देती हैं, तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया और द शॉर्ट साइटेडनेस. अब एक जो मायोपिक पर्सन होता है उसका रीजन क्या है, व्हाई ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट, ठीक है. इसका रीजन क्या होगा? पहला रीजन क्या है? ऑब्वियसली लाइक यू सी दिस पिक्चर, आपको ये आई बॉल दिखाई दे रहा है, व्हेन द लाइट रेज आर कमिंग. अब ये जो लाइट रेज फॉल हो रही हैं, है ना, तो यू कैन सी दिस लाइट रेज शुड फॉल ऑन द रेटिना, आपकी इस रेटिना पे फॉल होनी चाहिए. लेकिन अगर पर्सन मायोपिक है तो इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म होता है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है? इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ना. तो व्हाई? और वो भी किसका इमेज फॉर्म होगा? व्हेन ही इज लुकिंग एट द फार ऑब्जेक्ट. जब वो फार ऑब्जेक्ट देख रहा है तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसका इमेज रेटिना से पहले आ गया है, राइट. बट व्हेन ही इज लुकिंग एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट तो उसको इमेज रेटिना पे दिखाई दे रहा है. अब रीजन क्या है मायोपिया का? एक तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर यानी कि जो बैक साइड होता है आईबॉल का, ये क्या होता है, enlarge हो जाता है. enlarge यानी कि क्योंकि मसल्स का ही बना हुआ है, it is made up of muscles only, so that is why it gets enlarges in size, and sometimes what happens, the retina shifts to the little back, so because of that the image is formed in front of the retina, not on the retina, right. And because of this elongation of the ball, the correct formation of the image is not happening over here, है ना. नेक्स्ट क्या है, अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे मायोपिया को? तो ऑब्वियसली
क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो लेंस है आपका, ठीक है, वो रिफ्रेक्ट कर रहा है, बेंड कर रहा है, लेकिन द इमेज इज फॉर्मिंग फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो हमें चाहिए कि उसको पुश करके बैक साइड कर दे। तो वी नो दैट कि ऐसा कौन सा लेंस है जो कि रेज को डाइवर्ज कर देगा, दैट इज अ कॉन्केव लेंस। तो अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया एंड इफ वी यूज अ कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस यानी कि अगर हम उसके स्पेक्स में कॉन्केव लेंस लेते हैं, दैट कॉन्केव लेंस विल व्हाट इट डज, इट विल इंक्रीज द डाइवर्जन। ये डाइवर्जन इंक्रीज कर देगा यहाँ पे, है ना। और जब डाइवर्जन इंक्रीज करेगा तो बेंडिंग जब लाइट की होगी, इट विल बी टोटली ऑन योर रेटिना, तो वो रेटिना पे ही फॉर्म होगा, राइट। तो 3 things we have to keep it in mind here. Myopia, short-sightedness, person can see the nearby objects but cannot focus on the distant objects clearly, है ना। Why? Because या तो eyeball का curvature बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर elongation of the eyeball, या तो eyeball elongate हो जाती है ना। और correction क्या होगा? By using the concave lens. एंड जो कॉन्केव लेंस है वो क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो डाइवर्ज करके रेस को इट विल मेक एन इमेज ऑन द रेटिना, राइट। तो इसी को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस आर द सेम थिंग, करेक्ट। वेरी नाइस। नाउ कमिंग ऑन द फार साइटेडनेस, है ना। फार साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब फार साइटेडनेस में क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट होता है। पर्सन कैन सी डिस्टेंट इमेज क्लियरली, जैसे पेड़ है बहुत दूर पे है, ठीक है, तो पर्सन इस पेड़ को तो बहुत क्लियरली देख पा रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू रीड द न्यूज़पेपर क्लियरली, है ना। यानी कि ही कैन सी द डिस्टेंट इमेजेस क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, है ना। तो इस वजह से रीजन क्या हो रहा है? जो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होनी चाहिए थी? रेटिना पे, बट इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटिना के पीछे जाके फॉर्म होती है कहीं पे, है ना। यानी कि अगर कोई रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रही है तो इट इज फॉर्मिंग द इमेज हियर, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है अगर इन्फिनिटी से दूर से रेज आ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम ये भी कहते हैं कि भाई आप दूर का सोच रहे हो, पास का नहीं सोच रहे, है ना। तो अ पर्सन who thinks for दूर का but not पास का is suffering from the hypermetropia, right? How hypermetropia can be corrected? इसका correction कैसे होगा? By using a convex lens. अगर हम convex lens करते हैं तो वो क्या करता है? ये कन्वर्ज कर देगा, है ना। जो रेज बहुत ज्यादा डाइवर्ज होके दे आर मीटिंग बिहाइंड द रेटिना, देन इट वुड बी मीटिंग before the retina, that means just exactly on the retina to give you the correct image, है ना। और जब हम कहते हैं अगर किसी ने स्पेक्स लगाए हैं, if somebody says यार मेरे स्पेक्स का ना पावर +1 है, +2 है, डायोप्टर, है ना। what is the power? डायोप्टर, +2 डायोप्टर, that means that person is having a convex lens. जब भी कॉन्वेक्स लेंस लगता है स्पेक्स में तो पावर प्लस में होती है, कॉन्केव लेंस लगता है तो पावर नेगेटिव में होती है ना। और अगर प्लस में पावर लग रही है तो द पर्सन इज हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, दैट मींस वो दूर का देख सकता है, पास का उसको नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर ओवर हियर। Coming on the third defect, that is presbyopia, है ना। तो presbyopia में क्या होता है? It is the eye defect which occurs at the old age, है ना, जो old age में होता है usually हमें। Why? Because as the age increases, तो जो ciliary muscles हैं which hold this lens, है ना, ये जो ciliary muscles इस eye lens को hold करके रखती हैं, they become loose, है ना, and because of that they lose their power of accommodation. And when they lose their power of accommodation, so neither they can focus on the nearby objects clearly, nor they can focus on the far objects very clearly, है ना। तो इस तरीके के केसेस में व्हाट वी डू, वी यूज अ बाइफोकल लेंस। आपने एक चश्मा देखा होगा आपके दादाजी का या दादी जी का या नाना नानी का, उनका बाइफोकल होता है। बाइफोकल यानी कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस भी लगा होता है, कॉन्केव लेंस भी लगा होता है। ऊपर की तरफ लगा होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्यों? जब वो ऊपर देखते हैं तो दे कैन सी द फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जब वो नीचे देखते हैं, उनको रीडिंग करना है, न्यूज़पेपर या बुक पढ़ना है, वहां पे लगा होता है आपका कॉन्केव लेंस। तो इस तरीके के लेंस को हम कहते हैं बाइफोकल लेंस, है ना। So how we can correct our refractive defects? By using the different types of lenses in our specs, है ना। Just have a quick revision of everything.
How many types of defects? 3. Myopia, short-sightedness, near-sightedness, myopia या hyperopia या far-sightedness या long-sightedness is the defect where the image is formed behind the retina, है ना, और myopia में before the retina, है ना, और presbyopia में it can form anywhere, है ना. तो we use the different kind of lenses. In myopia we would be using our concave lens which has the negative diopter power. Hypermetropia we use the positive convex lens, and it converges, and in presbyopia we use the bifocal lens. All right, so this is the assignment questions which is given by me here, and it is the NCERT questions given in your textbook. Perform this question answers, write the answers or try the answers on your own after seeing this, and give the replies in the chat box, or you can connect to me in my Telegram app also with the same name, that is Smart Learners by Kamna Agarwal. I hope this session is quite a little interesting for you. So stay connected and wait for the next video. I'll be making the next video on the given